یا اللہ یا عظیمو، اے معبود اے عظمت والے، یعنی کہ بڑائی جس کی بیان کی جائے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی قسم کھا کے فرمایا، جس گھر میں میرے اس نام کا وظیفہ ہوگا اس گھر سے دولت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، وہ کچھ دنوں کے اندر ہی امیر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کا ایک ایسا نام لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر انسان اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنے کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پہ اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس نام کا وظیفہ کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پہ یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہر مشکلات کا، دکھ درد کا علاج لکھ دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، قرآن مجید کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس پہ بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تو اگلے دن اس سے تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کے تمام تر دولت کے مسائل حل ہو گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹل گئیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں اور فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام پڑھ کے سو جائے، صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو، دنیا کے سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے، یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل کے ساتھ کرنے پر دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر جگہ اور در بدر کی ٹھوکریں کھا لی ہیں، ساتھ میں ذلت و رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اس سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں کے نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرما دے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اس کے مستقل عادات بنا لے گا،
इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजलो करम से और रहमत व बरकत से वो हमेशा मालो माल और मालो दौलत में ही खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का सिर्फ एक नाम और सूरतुल इखलास आपने इस तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो मालो दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे। अब आप बड़ी से बड़ी हाजतें भी जिनका ताल्लुक रिस्क या मालो दौलत के हवाले से है या दुनियावी किसी भी हवाले से है वो पूरी हो जाएगी। फिर चाहे आपके माली हालात हुआ कितने ही खराब और मजदूर आपकी कितनी ही ज्यादा बेकार क्यों ना हो, आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो, आप रात को सोने से पहले ये इसमें मुबारक और सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद सो जाया करो। ये रोजाना की आपने रूटीन बना लेनी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। इसके कामलात आप खुद देखते हैं तो हैरान रह जाएंगे। गैब से ही अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम संवारते जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी इंसान पर अपना फजलो करम करता है इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है या फिर दिली तमन्ना है कि आपकी सब परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। बेटियां घर में जवान बेटी हैं, इनकी शादियां करनी है, इनकी उम्र ज्यादा हो रही है, इनकी शादी के कोई असबाब ही फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आपकी तमन्ना है कि ये रिस्क की तंगी दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन खत्म हो जाए और मेरे पास भी वाफिर मिकदार में रिस्क और माल दौलत की कसरत हो जाए। फिर आप लोग बेहिसाब किताब और माल दौलत यानी रिस्क मिले। अगर आप वो छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिशें हैं, लोगों ने नजरें लगाई हुई हैं, जादू करा दिया है, आप भी चाहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से सुकून वाली और ऐशो इशरत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आप भी आज ये वजीफा कामिल यकीन के साथ पढ़ लें, फिर अपनी खुली आंखों से इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफे के कमालात देखेंगे। आपके हालात इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथों को कौन सा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे, मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे, आपकी नस्लों तक संवर जाएंगी, बहुत जल्दी अमीर कबीर बन जाएंगे, इसके इलाके की आपकी पहचान बन जाएगी। ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम है और सूरे मुबारक का ये दिनों में और घंटों में आपको मालामाल बना देगा। प्यारे दोस्तों, आपने वैसे भी बहुत सारे अमल करे होते हैं, बहुत सारे वजीफे करते हैं, दुआ मांगते हैं और दर बदर की ठोकरों में आप लोग पड़े रहते हैं। आज इस वजीफे को अल्लाह पाक का मुबारक नाम या अल्लाह जो अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है उस नाम से अल्लाह पाक को पुकारें जो अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है। और फिर उसके बाद आप लोग दुआ मांगे और जो वजीफा बता रहा हूँ अल्लाह पाक की वहदानियत का, अल्लाह पाक की उलूहियत का इकरार करने का, और जब आप लोग उसकी अजमत को बार बार अपनी जबान से अदा करेंगे तो अल्लाह पाक को आपकी कोई ना कोई सी अदा लाजमी पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को करना किस तरीके से है उसको ज़रा ध्यान से समात फरमा लें। अल्लाह पाक ने हम पर वैसे भी बहुत सारी मेहरबानियाँ करी हैं, तो लिहाजा हमें आज के दिन अल्लाह पाक के इस नाम का विर्द लाजमी करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, किस तरीके से अमल करना है, सबसे पहले आप लोग बावुज़ू हो जाएं। बावुज़ू होना ज़रूरी है। आप लोग रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं, इशा की नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब आप लोगों ने करना किस तरीके से है, आप लोगों ने सबसे पहले बावुज़ू हो जाना है। बावुज़ू के अमल करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बावुज़ू हो जाए, अगर आपका वुज़ू है तो अच्छी बात है। नमाज इशा के बाद मस्जिद में करना चाहे मस्जिद में कर लें, घर में करना चाहे घर में कर लें। ख़वातीन जो हैं वो घर में ही करेंगी, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो कोशिश करें कि मस्जिद में करें। मस्जिद में नहीं कर सकते तो बिस्तर पर जब आप लोग आ जाएं तो उस वक्त भी आप लोग इस अमल इस वजीफे को कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ना है।
यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी एक अच्छे अंदाज में पढ़िएगा। अगर कोई और सा दुरूद पढ़ना चाहते हैं जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई और सा दुरूद पढ़ना चाहते हैं तो कोई और सा दुरूद भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और एक बार मेरे साथ भी सवाब की नियत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरीके से आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फौरन बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये ज़ाती नाम जो या अल्लाहु है और या अजीमु, यानी कि इन दोनों नामों का आप लोगों ने इकट्ठा तसव्वुर करना है। यानी कि या अल्लाहु या अजीमु, या अल्लाहु या अजीमु, या अल्लाहु या अजीमु, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। यानी कि या अल्लाहु या अजीमु ये एक हुआ, या अल्लाहु या अजीमु ये 2 हुए। इस तरीके से आप लोगों ने 313 की तादाद में पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरत मुबारका जो रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिस्क के हवाले से, वसअत रिस्क के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तरीन सूरत मुबारका है। आप लोगों ने इस सूरत मुबारका की तिलावत करनी है जिसके अंदर खालिस अल्लाह पाक की वहदानियत को बयान करती है और वो वाहिद मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं है और वो ला शरीक है और इसके सिवा इबादत के लायक भी कोई नहीं है। तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नाम और सूरतुल इखलास को पढ़ते वक्त अपने जहन में जो भी आपकी हाजत हो उसको तसव्वुर लाजमी कर लेना है। यानी कि जिस मकसद के लिए आप लोग इस वजीफे को करना चाहते हैं आपने उस मकसद को अपने जहन में रखते हुए करना है। गोया वो मकसद पैसों का भी हो सकता है, गोया वो मकसद अपनी पसंद की शादी का भी हो सकता है, या फिर कोई अपने घर का माल दौलत किसी भी चीज़ का जो आपका मकसद हो उसको जहन में रखते हुए आप लोगों ने डूब कर मोहब्बत के साथ, इंतहाई अदब के साथ आप लोगों ने ये सूरतुल इखलास पढ़नी है। कम अज कम आप लोगों ने सूरतुल इखलास की 1 तस्बीह पढ़नी है। 1 तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह की 1 तस्बीह पढ़नी है। यानी कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी पूरी 1 तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद दोबारा आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे या जौन सा भी दुरूद आपने अव्वल पढ़ा वही दुरूद आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग दुआ करें और फिर सो जाएं। इस अमल को 41 दिन तक के जारी और सारी रखें। आपको कुछ दिनों बाद ही इस अमल के मोजज़ात और करामात देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और जो भाई मेरी बहन दुआ के लिए कहती है अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब को अपने गैबी खजानों से रिज़्क़ अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।